So Shreya, you are only child of legends Sachin and Supriya. Yes. Now, is it help you in your career, or it was a blessing in disguise? Well, I mean, my parents are such wonderful performers, and they have so much experience in the film industry, and they continue to work. I think they've never been people who have told me this is what you should do, this is what you shouldn't do. I was always given the freedom to decide what I am passionate about, and I have learned from their actions and their being, the grace with which they've carried themselves, the way they've conducted themselves. And I always wanted to be able to carve a niche for myself in the film industry. So my journey was not like a typical Star Kids journey where I was on the cover of a magazine even before my work release. It's been a step-by-step organic journey. So today when people come to me and they tell me that we're proud of whatever your journey or graph has been, that makes me feel very happy. And my parents are also very proud that I've been able to sort of carve some space for myself. Is there any workshop or something you have done for taking up this challenge, a show which is very satirical kind of a tone? Like generally in life, or this one? For the show. So for this particular Yes. show, so in general, I'll just add that because I've done a lot of theatre, I enjoy training. I haven't been to any professional acting school, but I think no matter what field you're in, बहुत ज़रूरी होता है कि आप relevant रहने के लिए सीखते रहें. An actor is constantly learning. Even you all with all your experience, you have to keep your eyes and ears open. For this particular show, it's always challenging when you're playing a professional person, right? So I was a lawyer in Guilty Minds, and I'm a news reporter here. In 5 minutes, I have to convince you that I've been doing this all my life. And sometimes it's not just with the dialogues, it's the way with which you walk, it's the way with which you handle things on the table. We had a wonderful director and writers and fantastic co-actors, and the main preparation in this was to just understand the story and to show news reporters and journalists as human beings. हम इस शो में सब कुछ ह्यूमनाइज कर रहे हैं. It's not black and white, it's not right or wrong. Sometimes people are a result of their circumstances. So my main preparation for this really was multiple times really reading the script, building my character with my director under his guidance, and of course when you have lovely actors, it just makes the job easy. मैडम, आपने बहुत सारी फिल्में की है और इसमें आप एक एडिटर का किरदार कर रहे हो, जो कि आपकी पहली सीजन भी हिट गई है, दूसरी सीजन भी अभी आ रही है. तो मैडम, ये रोल आपको चैलेंजिंग कैसे लगा? मैंने इस रोल के लिए बहुत वेट किया है एक्चुअली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद मैं फिक्शन शो कर रही थी. और कहीं पे जो मैंने सीखा था वो ये था, जिस तरह की रोल्स मेरे पास या स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही थी, वो थोड़ी सी जो मैं कर चुकी हूँ उसी लाइन में थी, और मैं बढ़ना चाहती थी आगे. और उससे मेरा मतलब ये है कि मैं वो 20 साल की 25 साल की लड़की नहीं रही जो मैं थी उस वक्त. तो वो जो रोल्स मैं करती थी वो उस समय के लिए बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इस उम्र में वही रोल्स करना या उसी तरह लगना पॉसिबल नहीं है, ना मैं लगना चाहती हूँ. क्योंकि आज जब मैं यहाँ पे हूँ तो एक ज़िंदगी जी है, एक लाइफ आई हैव लिव्ड, और उसके एक्सपीरियंसेस हैं. तो वो एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और उन एक्सपीरियंस ने मुझे शेप किया है. और एज एन आर्टिस्ट आपकी जो ज़िंदगी होती है, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, वही तो आपको शेप करते हैं. और अगर मैं वो एक्सपीरियंस आने वाले किरदारों में नहीं दिखा पाई तो फिर क्या फ़ायदा, फिर वो आर्ट नहीं रहा मेरे लिए, एंड वो क्रिएटिविटी नहीं रही फिर मेरे लिए. तो इसीलिए मैंने इस किस्म के रोल का बहुत वेट किया था, बहुत मेहनत से, मतलब बहुत टाइम लग के मुझे ये रोल मिला है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर सॉ मी इन दिस रोल. हालांकि इनिशियली जब वो आए, उन्होंने भी कहा था कि ये आपका मेन रोल नहीं है, और वो कहीं पे पहले ये लगा कि मैं पहली बार अगर इतने सालों बाद आऊँगी, ये मेरा शो नहीं है, ये मेरा आपको ये किसने कहा? बिकॉज आपका एब्सोल्यूट वही मैं कह रहा, बट इट्स एन ऑनसम थिंग. लेकिन जब मैंने ये पढ़ा, ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर मुझे छोड़ नहीं रहा था. आई व्हेन आई स्लेप्ट, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग ऑल्सो, मुझे अमीना मेरे साथ में जी रही थी जैसे. और फिर उस समय मैंने डिसाइड किया कि यार अभी उधर से भी, उस माइंडसेट से भी निकलना चाहिए, जहाँ पे हम इस हिसाब से देखें कि ये मेरा शो नहीं, ये मेरा ही शो है.
अमीना के बिना ये शो बन ही नहीं सकता, और जिस तरह से अमीना ज़रूरी है उसी तरह से दीपांकर ज़रूरी है और उसी तरह से राधा ज़रूरी है। सो ये ऑनसॉन्ग कास्ट है और किसी के बिना ये शो नहीं बन सकता। और ये समझ, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, ये मेरे लिए समझना थोड़ा, मुझे वो एक वक्त लगा। उसके बाद में आई सेड नहीं, मैं ये चांस लूँगी, और मैंने हाँ किया एंड आई डिड दिस। What the audience will take away from this show, both of When you you? come as a main actor, it's very that mindset, you No, don't I realize it. There's a absolutely huge understand. mindset in that. इन्होंने जो कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, बिकॉज आजकल स्पेशली इवन OTT जो आया है, राइटिंग पे बहुत को इम्पोर्टेंस दिया गया है। लोग जानना चाहते हैं किसने लिखा। पहले सिर्फ एक्टर्स पे ही ज़्यादा अटेंशन हुआ करता था, और पहले का माइंडसेट ये भी था, इट वाज जस्ट हीरो हीरोइन विलन। आज हर एक काम में देखें, हर किरदार को उतना, स्पेशली सीरीज में उतना मौका मिलता है, ग्राफ मिलता है। एंड मेरे हिसाब से वो अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कहानी एक्टर्स से बढ़ के होती है। सो इन दैट सेंस ब्रोकन न्यूज़ ऐसी कहानी है जहाँ पे कोई एक इंसान दूसरे इंसान से इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी इम्पोर्टेंट है, और होनी भी चाहिए। What the audience will take away from this show, both of you? आई थिंक सीजन 1 में पहली बार जब हम सीजन 1 प्रेजेंट कर रहे थे, और जब आपकी तरह पत्रकारों के साथ मिल रहे थे, प्रमोट कर रहे थे शो को, तो कहीं पे एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस शायद स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन कहीं पे एक ये था कि अच्छा ये देखो अभी हमें टारगेट करेंगे, ये मीडिया के खिलाफ जाएगा और बताएंगे कि कैसे हमको दिखाया जाता है एक टिपिकल वे में। तो जब ब्रोकन न्यूज़ आया, ट्रेलर आया, और उसके बाद में उन्होंने सीजन देखा, तो फीडबैक हमें सारे पत्रकारों से यही मिला कि आपने असलियत दिखाई है, हम ये जीते हैं, और आपने हमारे चैलेंजेस रियलिस्टिकली दिखाए हैं। एंड दैट आई थिंक वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लिए, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसमें सिर्फ ये जो पत्रकारों का जो रिएक्शन